सभी तो रोज़े रख रहे हैं तो मैं भी रख रहा हूँ, पूरा घर वाले रोज़े रख रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा मैं रोज़े छोड़ूंगा। ये तसव्वुर बहुत ज़्यादा है हकीकत में, कि सभी रोज़े रख रहे हैं तो मैं भी रख लेता हूँ। रोज़े का मकसद क्या है? तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को रमज़ान मुबारक के महीने में पूरा कुरान सुनाया करते थे। तो कम से कम एक शख्स ये अहद करे कि वो रमज़ान के अंदर पूरा एक कुरान पढ़े, एक कुरान रमज़ान के अंदर रोज़ाना एक पारा, और सिर्फ रमज़ान में ही नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और इस हदीस के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह आले इमरान के अंदर फरमाया कि सयुतव्वफ़ूना मा बखिलू बिही यौमल क़ियामती, कि जिस माल में उन्होंने कंजूसी की होगी, जिस माल में उन्होंने कंजूसी से काम लिया होगा, क़यामत के दिन वो उनके गले का तोप बनाकर उनके गले में डाल दिया जाएगा। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في مقام الآخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تمام طرح کی تعریف و توصیفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے اور بے شمار درود و سلام نازل اللہ کے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم. انتہائی آیت کرام مقدر سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے، ایک سعادت اور ایک خوش نصیبی کی بات ہے. جو لوگ پچھلے رمضان تھے وہ اس رمضان نہیں ہے. آپ کے اعزاء و اقارب میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے رمضان پایا ہو، یہ رمضان انہوں نے اپنی زندگی کے اندر نہیں پایا، وہ رمضان کا آتی ہے. اللہ رب العزت نے اس کے فضل و کرم سے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ عطا کیا، تو ہم اس کی قدر کریں، ہم اس کے اندر عبادات کریں اور اللہ رب العزت کو حکم کی وجہ ہو رہی ہے. اور رمضان کی اہمیت کو سمجھے جس طریقے سے پہلے ایک حدیث بیان کی گئی تھی وہ پھر سے ریپیٹ کی جاتی ہے، کیونکہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور بغیر اس کی اہمیت کو جانے، کسی بھی چیز کی اہمیت کو بغیر جانے ہم اس پر دل سے عمل نہیں کر سکتے. جب کسی چیز کا علم نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ چیز ہمارے لیے بالکل معنی نہیں رکھتی، یا پھر اس چیز کی اہمیت وہ نظیر نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے معلوم ہونے کے بعد. ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے دور سے دو لوگ آئے اور دونوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں اسلام کو قبول کیا. ان میں سے ایک آدمی جو تھا وہ بڑا محنتی تھا، دین کے معاملے میں بڑا محنتی تھا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو محنتی تھا وہ ایک غزوے میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا، اور اس کے بعد جو دوسرا والا تھا وہ 1 سال بعد اپنی نیچرل وفات اس نے پائی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے پاس ہوں اور وہ دونوں وہاں پر موجود تھے.
تو अचानक से एक फरिश्ता आता है और उस शख्स को पहले आवाज़ लगाता है जिसने 1 साल बाद वफ़ात पाई, उसको पहले जन्नत के अंदर ले जाया जाता है और उसके बाद दूसरे वाले को ले जाया जाता है। ये बात सहाबा इकराम के अंदर मशहूर हुई। बात पहुँचते पहुँचते अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें ताज्जुब क्यों हो रहा है, तुम हैरत में क्यों पड़ रहे हो? ये बताओ कि बाद में जिसका इंतकाल हुआ उसको ज़िंदगी में 1 और साल नहीं मिला? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको 1 और साल मिला। आपने फरमाया अलैसा क़द अदरका रमज़ान, कि क्या उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर रमज़ान नहीं पाए? ये अल्फाज हदीस के गौर करने के लायक, क्या उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक रमज़ान और नहीं पाए? फ़स्सला फ़सामा वसल्ला मिन क़ज़ा व क़ज़ा, उसने इतनी नमाज़ें ज़्यादा नहीं पढ़ी? क्या उसने इतने रोज़े ज़्यादा नहीं रखे? कहा हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़मा बैनहुमा अबदु मिम्मा बैन अस्समाई वल अर्द, इस 1 साल की इबादत की वजह से उन दोनों के दरमियान, ज़मीन और आसमान के दरमियान का फ़र्क हो गया। तो ये रमज़ान की अहमियत है, इसकी फ़जीलत है, लेकिन हम पर से रमज़ान रिवायती तौर पर गुजरते हैं, शोरी तौर पर से नहीं गुजरते। रिवायती तौर का मतलब ये है कि सिर्फ रोज़े रख रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, उसके अंदर इबादत का कोई मामूल नहीं है, इल्म हासिल करने का कोई मामूल नहीं है, अल्लाह से दुआ मनाजात करने का कोई वक्त नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से क़ुर्बत हासिल करने का कोई वक्त नहीं है, अपने लिए इस्तग़फ़ार करना, तौबा करना, जन्नत को अपने हक़ में मांग लेना, जहन्नम से निजात ले लेना, और ये सारी चीज़ों के लिए हमारे पास क्या है? ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को क्यों मांगने का सलीका बताया, क्यों तमाम अंबिया किराम की ज़बानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआएं मंगवाई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगो। और हम लोग सोचते हैं कि हम कोई गुनाह नहीं करते, हम कोई शिर्क नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह हम शिर्क नहीं करते, लेकिन मासूम अनिल ख़ता नहीं, गुनाहों से पाक है क्या कोई? नहीं है। और यही शैतान की चाल, शैतान हमें इस वसवसे में डालता है और इस ख्याली बात के अंदर डाल देता है कि तुम लोग गुनाह नहीं करते हो, तौबा क्यों करोगे? और एक इंसान क्या हो जाता है, वो मुसलसल जो है खताओं के अंदर मुलविस होता जाता है। और रमज़ान जैसे अजीम महीने के अंदर जबकि शैतान नहीं है, उसके बावजूद मामूल ये बन गया कि अब नमाज़ों में सुस्ती, इबादत में सुस्ती, कुरान पढ़ने में कोताही, ज़िक्र व अस्कार करने में कोताही, अल्लाह से दुआ मनाजात नहीं। तो अब ज़रा बताइए कि हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह जो तौहीद पर है, रमज़ान में अगर ये कंडीशन हो रही है, जिसकी नहीं हो रही अल्हम्दुलिल्लाह सुन्ना वास्ता, लेकिन जिसकी हो रही है, तो ज़रा बताइए कि फिर मेरे रमज़ान में शैतान कैसे अटैक करेगा? अगर तो शैतान है ही नहीं, उसके बावजूद ये हाल है कि कमज़ोरी, दीन की कमज़ोरी, ईमान की कमज़ोरी का ये लेवल है, तो फिर बाकी रमज़ान के अंदर जब शैतान आज़ाद होगा, जब ईद का चाँद नज़र आएगा और शैतान वापस से क्या हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा, तो वो किस कदर फिर हमारे ऊपर वापस से वार करेगा। तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि अब जो 11 महीने शैतान ने हम पर मेहनत करी थी, वो इस कदर हमारे नफ्स पर काबिज हो गई है कि अब वो 1 महीने के अंदर वो काम हमारा खुद का नफ्स हमसे करवा रहा है। तो ये महीना अल्लाह की तरफ से कितनी बड़ी नेमत कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी ज़िंदगी के सबसे बड़े दुश्मन, आपको जहन्नम में ले जाने का वादा करने वाले दुश्मन, आप तमाम के लिए ये कहकर आने वाले अल्लाह के सामने उसने अल्लाह की इज़्ज़त की कसम खाई थी। अल्लाह ने कुरान में तज़किरा किया, शैतान ने इज़्ज़त की कसम, तेरी इज़्ज़त की कसम में तेरे अक्सर बंदों को गुमराह कर दूँगा, और ये कहा था कि वला तजीब अक्सर लोग शाकिरीन, और तू तेरे अक्सर बंदों को ना शुक्रा पाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी को कैद कर दिया, और फिर हम उसी महीने के अंदर इस चीज़ की अहमियत को नहीं समझते। तो हमसे बड़ा बदबख्त कौन है कि हम इसी के अंदर ट्रेनिंग लेकर अपने आप को जन्नत के रास्ते पर नहीं चला रहे, जन्नती नहीं बना रहे, जबकि रमज़ान मुबारक का महीना अल्लाह की तरफ से एक अजीम नेमत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें, हमारे लिए एक ऐसा तरबियत का माहौल बनाया, एक ऐसा निज़ाम बनाया, रोज़े की हालत में एक ऐसा तसव्वुर अल्लाह ने हमें दिया कि हम जब
जायज़ चीज़ों से रुक सकते तो फिर बाकी महीनों में नाजायज़ चीज़ों से तो नहीं, आराम चीज़ों से तो नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि फमा बैनहुमा अबअदु मिम्मा बैन अस्समाई वल अर्द, उन दोनों के दरमियान ज़मीन आसमान में जो फ़र्क हुआ वो इस वजह से हुआ कि उन्होंने शौक़ी तौर पर रमज़ान को गुजारा, रिवायती तौर पर नहीं गुजारा। कि सभी तो रोज़े रख रहे हैं तो मैं भी रख रहा हूँ, पूरे घर वाले रोज़े रख रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा मैं रोज़े छोड़ूंगा। ये तसव्वुर बहुत ज़्यादा है हकीकत में, कि सभी रोज़े रख रहे हैं तो मैं भी रख लेता हूँ। रोज़े का मकसद क्या है वो बगैर जाने अगर रोज़ा रखेंगे तो फिर उसके नामाए अमाल में कल जब वो क़यामत के दिन अल्लाह के पास जाएगा तो उसको भूख लिखी हुई नजर आएगी। भूख तो बोलेगा अल्लाह तो सिर्फ भूख लिखी, रोज़ा का है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेगा तूने रोज़ा रखा ही ना, तू तो सिर्फ भूखा रहा, क्योंकि तेरे रोज़ा के कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा, तूने उसका मकसद ही नहीं समझा। तूने मेरे लिए रोज़ा रखा, तूने उन लोगों के लिए रोज़ा रखा कि ये लोग सब रख रहे हैं, मैं भी क्या कर लेता हूँ। रोज़े को दिल से रखो, मोहब्बत से रखो, ईमान से रखो, अकीदत के साथ रखो, तौहीद के साथ रखो, वज़नी रोज़ा रखो, ऐसा रोज़ा रखो कि कल रोज़े क़यामत आपके नामा अमाल में भारी हो जाए। ऐसा रोज़ा रखो कि रोज़े का हक़ अदा हो जाए। ऐसा रोज़ा रखो कि कल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें सवाब अता कर दे। और मन साम रमज़ाना ईमान व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह के नबी ने हदीस को जिक्र की कि जो रमज़ान के अंदर ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रोज़ा रखता है। सवाब की नीयत तब होगी, सवाब की नीयत जब इंसान को यकीन होगा कि हाँ मैंने जो रोज़ा रखा है अल्लाह को मुझे इसका सवाब देना, इसका अज्र तो मुझे मिलेगा इंशाअल्लाह। तो उसके बाद जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो सवाब की नीयत रोज़े के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी अहमियत और फजीलत के साथ रोज़े के साथ इसको जोड़ा है। इसी तरीके से यही तरावी के साथ भी जोड़ा सवाब की नीयत से, और यही तहज्जुद करने की इबादत के साथ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जोड़ा। ये महीना बहुत बड़ी इबादत है, हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और याद रखें ये माहौल रमज़ान का, इबादतों का, क़यामुल लैल का जो अल्लाह ने हमें दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब रमज़ान की पहली रात आती है तमाम शैतानों को कैद कर दिया जाता है और तमाम सरकश जिन्नों को कैद कर दिया जाता है और जन्नत के तमाम दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, कोई दरवाज़ा बंद नहीं होता। और जहन्नम के तमाम दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है, कोई दरवाज़ा खुला नहीं होता। तो युनादी मुनादी, और अल्लाह की तरफ से पुकारने वाला पुकारता है या बागी अल खैर अकबी, कि ए नेकियों में सबकत करने वाले आगे बढ़, एक खैर के काम करने वाले आगे बढ़। वो या बागी शर या फिर एक गुनाह करने वाले, एक शर करने वाले, एक शर के काम करने वाले क्या बस कर। उसके बाद प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रमज़ान की हर रात में अल्लाह तबारक व तआला कुछ लोगों को जहन्नम की आग से आज़ाद करता है। और ये हर रात होता है, फिर कुल्ली लैला, कि हर रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों को जहन्नम की आग से आज़ाद करता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हम में से बहुत सारे ऐसे हो अल्लाह के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा नाम जन्नतियों की लिस्ट में लिखे, लेकिन कभी हो उस लिस्ट के अंदर नाम जो हमें, जिसके लिए हम कभी सोच भी नहीं कर सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि जहन्नम की लिस्ट में भी कभी हमारा नाम हो सकता है। सबसे बड़ी नाकामी इंसान की नाकामी क्या मालूम, तो उसका नाम जहन्नम की लिस्ट में आ जाए, सबसे बड़ी नाकामी। फिर सारी कामयाबी आप छोड़ दो, दुनिया में कितना ही तरक्की कर लो, कुछ भी कर लो, कोई चीज़ फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती अगर जहन्नम की लिस्ट बनती है ना। दुनिया में बनती है, इंसान फेल हो जाता है, फेल वालों की लिस्ट, पास वालों की लिस्ट, इन लोगों का जो है सिलेक्शन हुआ, ये लोग रिजेक्ट हो गए। कितना इंसान वो होता है कि यार 10 साल मेहनत करिए, 10 साल की मेहनत से मिला गया, वो ज़िंदगी भर की मेहनत इस इंसान की, वो इंसान को कोई फ़ायदा नहीं दे सकते और उसका नाम किस लिस्ट में आ जाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर रात, ये कितना बड़ा फज़ल वाला महीना कि हर रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों को उस लिस्ट से निकाल कर इस लिस्ट में डालता है। और ये उसके फजल से होता है, उसके करम से होता है। एक इंसान की क्या वक़्त है कि वो अपने लिए कोई फैसला कर सके। एक इंसान अपनी एक सांस का मालिक नहीं है, जो सांस लेता है, एक बाल का एक इंसान अपना मालिक नहीं है, एक इंसान एक ज़र्रे का मालिक नहीं है, वो ये कर ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता कि मैं इस चीज़ का मालिक हूँ। हकीकी मालिक कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। तो वो मालिक हकीकी आपको क्या करता है, अपने फजलो करम से उस लिस्ट के अंदर दाखिल करता है। तो उससे वो चीज़ मांगो। तो बात बताइए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगेंगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, लेकिन मांगते ही नहीं है। क्यों नहीं मांगते? शर्म आती, हाथ नहीं उठाते, शर्म की वजह से नहीं उठाते हो। जब रोज़े क़यामत एक इंसान इस कदर नफ्सी के आलम में होगा कि ये कहेगा
कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रब्बिरजिऊन कि एक मरतबा लौटा तो पूरी ज़िंदगी सजदे में गिरा रहा। अब वो अगर वो आलम देख कर आएगा तो कहाँ सजदों में नहीं होगा, बताइए। पूरी ज़िंदगी चाहे कोई देख रहा हो चाहे नहीं कोई देख रहा हो, वो सजदे के अंदर गिरा रहेगा, लेकिन ये सोचेगा कि मैं किसी तरीके से मेरी वापस से क्या हो जाए, लेकिन क्या उसको मौका मिलने वाला है? इसीलिए हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगे, तलब करें, दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमें माफ़ करने वाला है और अपने आप को जहन्नम से इस महीने के अंदर रिहा करा कर अपना नाम जन्नतियों की लिस्ट के अंदर लिखा दे। इसी तरीके से रमज़ान की सबसे ख़ास इबादत है रोज़ा। रोज़े का मकसद क्या है? तकवा। और तकवा क्या है? तकवा है जन्नत की गारंटी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कहा कि उइद्दत लिलमुत्तक़ीन, कि जन्नत जो है मुत्तक़ियों के लिए बनाई गई, तकवे वालों के लिए बनाई गई। तो ये रोज़ा हमें लेकर जाता है जन्नत की तरफ। तो रमज़ान हमें रोज़ेदार बनाता है। रोज़ेदार यानी मुत्तक़ी बनाता है। मुत्तक़ी यानी जन्नत में जाने वाली चीज़। एक इंसान जन्नत के अंदर चला जाए, वो असबाब जो है रोज़ा पैदा कर देता है। तो हर इबादत हमें करने का हुक्म देती है कि ये करो वो करो, लेकिन रोज़ा हमें रुकने का हुक्म देता है। रोज़ा हमें रुकना सिखाता है। रोज़ा हमें ट्रेनिंग देता है कि अल्लाह के हुक्म पर हम कर सकते हैं, तो जिन कामों से अल्लाह ने हमें रोका है हम उनसे रुक भी सकते हैं। और असल ट्रेनिंग यही है। खाना पानी की हमारी ज़रूरत है। एक इंसान अल्लाह के हुक्म पर अपने ज़रूरत को छोड़ देता है, तो फिर वो अल्लाह के हुक्म पर अपनी आदत को क्यों नहीं छोड़ता? एक शख्स बोलता मेरी ये आदत है, मेरी वो आदत है, और आदत उससे छूटती नहीं है, तो फिर रमज़ान के अंदर तो आप अपनी ज़रूरत को छोड़ रहे हैं। तो आपके लिए ज़रूरत ज़्यादा ज़रूरी है कि आदत ज़्यादा ज़रूरी है? एक इंसान के लिए ज़रूरत ज़्यादा ज़रूरी है। एक इंसान खाना और पीना नहीं छोड़ सकता। अभी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो मैं भूख की हालत में बोल रहा हूँ, गला सूख रहा है, माइक बंद है, लेकिन बोल रहा हूँ। और प्यासा हूँ, किसके लिए प्यासा हूँ? अल्लाह के लिए। प्यास ये ज़रूरत है, एक इंसान की नीड है, बेसिक नीड है। वो इसको छोड़ रहा है, किसके लिए छोड़ रहा है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर। ये लोगों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए, जैसा कि तुमसे पहले उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए। रोज़ा फ़र्ज़ होने की बुनियाद पर तकवा हासिल करने के लिए, और तकवे के बाद जन्नत की गारंटी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने की, उसके लिए इंसान भूखा रह रहा है, तो फिर वही शख्स अपनी आदत को क्यों नहीं छोड़ सकता? वही शख्स अपनी आदत को क्यों नहीं छोड़ सकता? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कितने रोज़ेदार ऐसे हैं जिनके नामाए आमाल में रोज़े की जगह सिर्फ और सिर्फ भूख लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? भूख लिखी जाती है। हम सभी यहाँ पर बैठे अल्हम्दुलिल्लाह सभी रोज़ेदार। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को पूरा महीना रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए और इखलास के साथ रखने की तौफीक अता फरमाए। तो क्या हम ये चाहते हैं कि इतना बड़ा रोज़े का अज्र जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद अपने आप से अता करेगा कि रोज़ा बंदा मेरे लिए रखता तो मैं ही उसका अज्र दूंगा? क्या बोला अल्लाह ने कि रोज़ा मेरे लिए रखता बंदा, मैं ही उसका अज्र दूंगा। कल वो जाए लाइन में खड़ा रहे और फिर जब अज्र बटे तो वो देखे कि सिर्फ भूख लिखी है। क्या लिखा है? सिर्फ भूख, और रोज़ा तो लिखा ही नहीं। तो बहुत सारे रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको सिवाय भूख के और कुछ भी नसीब नहीं होता। और कितने तहज्जुद गुजार ऐसे हैं, कितने तरावी पढ़ने वाले ऐसे हैं, कितने क़यामुल लैल करने वाले ऐसे हैं जिनको सिवाय शब बेदारी के और कुछ नसीब नहीं होता, कि सिर्फ रात जागना उनके नसीब में लिखा जाता है। ये सिर्फ रात जागे। तो इसीलिए ईमान और एहतिसाब की नीयत से इसी तरीके रोज़े को तक़वे का हुसूल का मकसद बनाएं, उसको बोझ न समझें। हम दुनियावी मसरूफियात को थोड़े दिनों के लिए कम कर दें कि कुछ हमें रमज़ान से हासिल हो जाए, हम रमज़ान से कुछ हासिल कर लें। रोज़ा अगर तक़वे का हुसूल मकसद नहीं है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को उस शख्स के रोज़े की कोई ज़रूरत नहीं कि वो अपना खाना और पीना छोड़ दे, जो अपनी ज़िंदगी के अंदर रोज़ा रखे और वो बेहुदा बातों को ना छोड़े, लगो और रफ्स की बातों को ना छोड़े। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कोई ज़रूरत नहीं कि वो अपना क्या करे, रोज़ा छोड़ दे। इधर कुरान का महीना है रमज़ान। अब एक चीज़ के अंदर ये आती है कि रमज़ान के महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर नेकी के 700 गुना तक देता है, 70 गुना तक देता है। तो ये सिर्फ रमज़ान के लिए ख़ास नहीं है, बल्कि एक आम हदीस है और ये पूरे 12 ही महीनों के लिए हमेशा के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहे 10 गुना दे, जिसे चाहे 70 गुना दे और जिसे चाहे 700 गुना बढ़ा कर दे।
یہ اللہ رب العزت کی منشا ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے جو خرچ کرے اللہ رب العزت اس کو دے عطا کرے۔ قرآن کا مہینہ ہے، اللہ نے جب رمضان کا ذکر کیا تو اس میں کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ قرآن یہ رمضان جو ہے قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ، اس کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رمضان مبارک کے مہینے میں پورا قرآن سنایا کرتے تھے۔ تو کم سے کم ایک شخص یہ عہد کرے کہ وہ رمضان کے اندر پورا ایک قرآن پڑھے، ایک قرآن رمضان کے اندر روزانہ ایک پارہ، اور صرف رمضان میں ہی نہیں، اللہ رب العزت کو وہ عبادت پسند ہے چاہے تھوڑی ہو لیکن ہمیشہ کے ساتھ ہو، رمضان کے بعد بھی روزانہ ایک پارے کا معمول رکھے، ایک پارہ نہ پڑھ سکے تو آدھا پڑھے، آدھا نہ پڑھ سکے تو ایک رکوع پڑھے، ایک رکن تو ایک پیش کم سے کم روزانہ اپنی زندگی کے اندر قرآن کو شامل کرے۔ یہ کیسے رمضان جو ہے دعا کا مہینہ ہے، قرآن کریم میں جہاں رمضان کا ذکر ہے وہیں بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا ذکر کیا۔ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو انہیں جواب دے دو کہ میں قریب ہوں، مجھے دعوت الداعی اذا دعانی، کہ جو وہ مجھے پکارتے ہیں میں ان کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ تو بندہ اللہ کے لیے بھوکا ہے، پیاسا ہے، اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور دعا کرے کہ رمضان سے بہتر کوئی ٹائم نہیں ہے دعا استغفار کرنے کا، اس کے اندر ہم تمام گناہوں کو معاف کروا لیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس شخص کی ناک آلود ہو جو رمضان کا مہینہ پالے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے، یعنی رمضان کا مہینہ گزر جائے اور وہ کیا کرے اپنی مغفرت نہ کرا سکے، وہ اس کے اوپر سے رمضان ایسے ہی گزر جائے جیسے آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو مین چیز یہی ہے، اصل چیز یہ کہ انسان کیا کرے توبہ استغفار کرو، اپنی مغفرت کر لے، اور اللہ کہتا ہے کہ لو بلغ الذنوب کعنان السماء، کہ تیرے گناہ اتنے ہو جائے کہ آسمان کے کناروں کو بھر دے اور تم مجھ سے معافی مانگے میں تجھے معاف کر دوں۔ تو اگر گناہ اتنے بھی ہو جائے کہ آسمان کے کناروں کو بھر دے اور اللہ رب العزت سے اگر معافی مانگی جائے تو اللہ رب العزت کیا کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ لیکن توبہ ایسی ہونی چاہیے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم، اس کے بعد اللہ نے کہا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ یہ ایمان والوں اللہ کے نزدیک ایسی توبہ کرو، توبہ نصوح، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ نصوح کرو۔ توبہ نصوح کا مطلب یہ کہ گناہ سے توبہ کر لو اور پھر واپس پلٹنے کا ارادہ نہ ہو، تو امید ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں معاف کر دے گا اگر تم یہ والی توبہ کرو۔ باقی اگر ایسی توبہ ہے کہ یہ دل کے اندر شیطان ہے، دماغ کے اندر شیطان ہے، یا بھی تو توبہ کر لو پھر واپس سے یہی عمل کیا کریں گے، واپس سے کر لیں گے، تو پھر اللہ رب العزت ہمیں جاننے والا ہے، وَإِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تمہارے دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ بھید کسے بولتے ہیں کہ انسان بہت اندر چھپا کے رکھتا ہے، اس کو بھید بولتے ہیں۔ دلوں کی بات بھی نہیں، دلوں کی بھید، دل کی بات تو ایک انسان بتا دیتا، بھید بہت مشکل سے ایک انسان بتاتا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کہ تمہارے دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے یہ شخص مجھے دھوکہ دے گا، اللہ رب العزت کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بڑی بہترین زندگی گزاریں اور اللہ رب العزت سے ہم جب توبہ کریں تو یہ سمجھ کر کرے کہ اللہ رب العزت سب کچھ جاننے والا ہے، اگر میں واپس سے کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں تو اس ارادے سے بھی توبہ کریں کہ اللہ یہ ارادہ واپس آ رہا ہے، اس سے بھی کیا مجھے معاف فرما دیں اور میں اس سے بھی توبہ کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے رمضان میں خوب صدقہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے مہینے میں آندھی کی طرح سخاوت کیا کرتے، خوب صدقہ کیا کرتے تھے، خوب مال خرچ کیا کرتے تھے، اور زکوٰۃ کو انصاف کے ساتھ نکالا کرو، اور زیورات کی بھی زکوٰۃ نکالو۔ اگر زیورات کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، مال کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابن ماجہ میں اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا۔ اس کی آنکھوں کے پاس 2 سیاہ نقطے ہوں گے جیسے سانپ کے ہوتے ہیں، پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں سے اسے پکڑ لے گا اور کہے گا کہ انا کنزو کا، انا کنزو کا،
मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ जिसे तू बचाया करता था। यानी एक इंसान जिस माल को बचा कर रखता है, छुपा कर रखता है और सोचता है कि ये मेरा सेफ्टी फंड है, या सोचता है कि ये मेरा सिक्योरिटी फंड है, या सोचता है कि ये मेरा फ्यूचर का फंड है, या सोचता है कि ये मेरा इमरजेंसी फंड है, या सोचता है कि ये जो फंड है ये मेरी दुनिया बना देगा, मुझे संवार देगा, मेरे फ्यूचर को सिक्योर कर देगा। लेकिन वही चीज़ उसके आने वाले जो असली फ्यूचर है उसको बर्बाद कर देगी। क्या फरमाया कि जो शख्स अपने माल को जमा करके रखता है, उसकी ज़कात नहीं निकालता, वही माल कल रोज़ क़यामत एक गंजे सांप की शक्ल में आएगा, और उसके माल जो गंजे सांप की शक्ल में आएगा उसके 2 नुक्ते होंगे सर पर, यानी उसकी 2 आँखें भी होगी, और वो आकर उससे कहेगा, उसके गले में तोप बनाकर जब डाला जाएगा कहेगा कि मैं तेरा माल हुआ ना तन दूंगा ना तन दूंगा, कि मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा माल हूँ जिसे तू बचा कर रखा करता था। तो अल्लाह के लिए, अल्लाह की राह के अंदर ज़कात को निकाल दीजिए। ये ज़कात जो है ये इस्लाम के अंदर जो हमें ये तसव्वुर दिया है, ये दरअसल माल को पाक करने के लिए, माल का जो गंदा हिस्सा है उसको निकाल दो, आप उसके अंदर से उसको हटा दो। 2.5% ज़कात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी है, वो निकालना हर मालदार पर, साहिब हैसियत पर फ़र्ज़ है कि वो अपने माल के अंदर से ज़कात को निकाले और उनको वो हिस्सा दे जिनका वो हक़ है। अगर वो ऐसा नहीं करता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गालिब है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कादिर मुतलक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात पर कुदरत रखता है कि वो जो शख्स माल नहीं निकाल रहा, दरअसल वो समझ रहा है कि मैं इस माल का मालिक हूँ, ये इस माल का ओनर हूँ, लेकिन वो उस माल का आर्जी मालिक है, हकीकी मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात पर कुदरत रखता है कि वो शख्स जिसको उसका हिस्सा मिलना चाहिए था, जिसको उसका हक मिलना चाहिए था, जो उसके पड़ोस में है या गरीब है या मिस्कीन है या उसके रिश्तेदार में है, जिस तक ज़कात पहुँचनी चाहिए थी, और इसके थ्रू अगर ज़कात नहीं पहुँच रही तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात पर कादिर है कि वो उस शख्स को जो गरीब है, जो मिस्कीन है, उसको मालदार कर दे और उसको गरीब कर दे। जिसके पास माल है उसको मिस्कीन कर दे। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का माल है। हकीकी मालिक कौन है माल का? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। और उसने हमें जो हुक्म दिया सिर्फ 2.5% ज़कात निकालने का, ज़ेवरात का जो निसाब बताया, जानवरों का जो निसाब बताया, प्रॉपर्टी का जो निसाब बताया, इस तमाम निसाब के हिसाब से हमें ज़कात निकालना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। अगर हम ज़कात के अंदर दाखिली करते हैं तो ये हदीस हमारे ऊपर है, और इस हदीस के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह आले इमरान के अंदर फरमाया कि सयुतव्वफ़ूना मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामती, कि जिस माल में उन्होंने कंजूसी की होगी, जिस माल में उन्होंने कंजूसी से काम लिया होगा, क़यामत के दिन वो उनके गले का तोप बनाकर उनके गले में डाल दिया जाएगा। और तोप भी कैसा बनाया जाएगा? जिसमें आता है कि 7 ज़मीन के बराबर तोप बनाया जाएगा, 7 ज़मीन के बराबर, और उसको उसके गले के अंदर डाला जाएगा। अब ज़रा सोचो आप, क्या इंसान उस बोझ को उठा पाएगा, उसको संभाल पाएगा? ऊपर से पसीने में अलग डूबा होगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने माल की ज़कात निकालें। जिन जिन के पास माल रखा हुआ है, जिन पर निसाब हो गया है, वक्त हो गया है, वो उस माल की ज़कात निकाल कर उससे अभी ही फारिग हो जाए, तभी जाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बरकत आएगी। अगर उस माल में से ज़कात नहीं निकाली जाएगी तो अभी वक्त कम है, लेकिन अगर उसके ऊपर बयान किया जाए तो किस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान और हदीस के अंदर तलक़ीन की है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें चेतावनी दी है कि अगर तुमने अपने मालों के अंदर से ज़कात नहीं निकाली तो हम जो है तुम्हारे माल में से बरकत को ख़त्म हो, बरकत के दरवाज़े रुके, ना हमारा फिर इस्तग़फ़ार तौबा कबूल होगी, ना हमारे ऊपर रहमतों की बारिश होगी। ज़कात नहीं निकालेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पर से नेमतों को काट देगा। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर कई और जगह इसका तज़किरा फरमाया है। तो हमें चाहिए कि हम इस हदीस की रोशनी में और इस कुरान की आयत की रोशनी में इस बात को समझ ले, काफ़ी है कि हमारे ऊपर ज़कात को निकालना क्या है, फ़र्ज़ है। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कहने और सुन्नत से ज़्यादा अमल करने की हम मुफ़ीद अता फरमाएं। जब तक जिंदा रहे माँ और इस्लाम पर जिंदा रहे, जब हम मौत के इस्माल